Hello dear children, today I am explaining about the maths. That's overview a topic, meaning of maths. Meaning of maths, there are there are three types of maths: political math, physical math, thematic math. तो हम लोग जो है सो इसमें ग्लोब, मैप, इसके अलावा सिंबल, डायरेक्शन, स्केल, कलर, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैप्स, के बारे में जानेंगे। इसके पहले कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग जो है सो इसके बारे में जानेंगे। द ग्लोब एंड मैप्स। ए ग्लोब इज a small model of Earth. It is most accurate way of looking at the size, shape, and place of Earth. But it has same shortcoming and disadvantage of globe. First, it is difficult to carry a globe around. It is not possible to see all the parts of the Earth surface at the same time. It cannot show detailed information. To avoid these problems, we use maps. A map is a drawing of the Earth's surface or part of it, flat surface such as sheet of a paper. Advantage of a map. Maps can be drawn to show the whole world, a single continent, a country, a city, your neighborhood, and even your school. This can be drawn in any size. Maps can be folded and are easy to carry. It is easy to locate the political boundaries of a country on a map. The distribution of forests, crops, minerals, industries can easily be seen on maps. The types of map. There are three types of map. Some of these are political map, physical map, thematic map. Political maps, which show boundaries of the countries and states are important cities. Physical map, which show natural features of the land such as mountains, rivers, and plains. Thematic map, which show crops grown or minerals found in various places, rainfall in different areas, roads, railways, and airlines routes. Such maps which are based on a theme or a topic are called thematic map. Elements of map. There are four elements of map: direction, symbol, scale, colors. जैसे ये जो है मैप का जो एलिमेंट है, हम इसको की ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। There are four elements of map: direction, symbol, scale, color. डायरेक्शंस, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। डायरेक्शन, दिशा के बारे में। ये जो डायरेक्शन दिए हुए हैं, one of the most important elements of a map is direction. There are four cardinal direction: north, south, east, and west. There are four cardinal direction: north, east, south, west. Maps are drawn with north at the top. It is marked as N. North of the top जो है सो marked N. नॉर्थ को हम लोग N से सूचित करते हैं,
और जो है सो साउथ इज एट द बटम, साउथ को जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको साउथ बोलते हैं, साउथ से सूचित, इसको एस से सूचित करते हैं। उसके अलावा ईस्ट, ईस्ट इज टू द राइट, जो राइट वाला जो भाग होता है उसमें ईस्ट होता है, जिसको हम लोग ईस्ट से सूचित करते हैं। और जो लेफ्ट, वेस्ट इज टू लेफ्ट, लेफ्ट में जो भाग होता है उसको हम लोग वेस्ट से सूचित करते हैं, यानी डब्ल्यू से सूचित करते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ जो है सो साउथ ईस्ट lies between east and south. Southwest, southwest, southwest lies in the southwest lies between south and west. और northwest, northwest lies between north and west. ओके, स्केल, इसके बाद हम लोग स्केल पढ़ेंगे। स्केल के बारे में डिस्कशन करेंगे। द स्केल ऑफ ए मैप इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस शो ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, दैट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज may be 100 किलोमीटर बट ऑन मैप इट इज सो 1 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग जब दो शहर, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज यानी दो शहर के बीच की दूरी को हम लोग मैप में देखना होता है, तो मान लीजिए कि 100 किलोमीटर है, तो हम लोग मैप पर 100 किलोमीटर की जगह पर 1 सेंटीमीटर शो करते हैं, 1 सेंटीमीटर को समझते हैं। इस तरह जो है सो इसको हम लोग मैप पर एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी भी हम लोग जान जाते हैं। द स्केल इज जनरली ड्रॉ एट द टॉप और द बॉटम ऑफ द मैप। कलर्स, colors, certain colors are used in maps, so features such as ocean, sea, mountain, plain, desert. Water bodies, water bodies are always show in blue deep, blue show deep water and light blue show shallow water. Mountains and highlands, mountains and highlands are show in brown and yellow, dark brown show high mountain, light brown show lower mountain, and hills yellow show plateau. Plains and lowlands are show in green. हम लोग इस जब हम लोग बुक इसको खोलेंगे तो इसमें बुक में दिया हुआ है थोड़ा सा छोटा सा खंड में, इसको हम लोग देखेंगे जो है सो डार्क ब्लू को डीप वाटर्स, लाइट ब्लू को शैलो वाटर्स, ग्रीन को प्लेन्स, लाइट ब्राउन को हाईलैंड्स, डार्क ब्राउन को माउंटेन्स, येलो को हिल एंड प्लेट्यू। जो है सो ये कलर से हम लोग मैप पर जो है सो समझ जाएंगे कि ये जो डार्क ब्लू है ये डीप वाटर का है, लाइट ब्लू है जो सो शैलो वाटर का है, ग्रीन का प्लेन्स है, लाइट ब्राउन का हाईलैंड्स है, डार्क ब्राउन का माउंटेन्स है, येलो का हिल्स एंड प्लेट्यू। एंड जो है सो सिंबल्स, सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। Symbols, people all over the world use the same set of symbols and there is an agreement of these symbols. These are called conventional symbols. And symbol is a shape of sign that is used to represent some things. जो है सो इसमें हम लोग जो है सो ये जो बुक में दिया हुआ है ये सिंबल, इसमें हम लोग देख लेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए क्या है, स्टेट बाउंड्री के लिए क्या है, मेटल रोड के लिए ये सिंबल दिया हुआ है, अनमेटल्ड रोड के लिए ये है, टनल के लिए ये है, कार ट्रैक के लिए ये है, फुटपाथ के लिए ये है। इसको हम लोग देखेंगे रेलवे लाइन, बोर्ड गेज। रेलवे लाइन में भी दो होता है, एक बोर्ड गेज एक मेट्रो गेज। तो
बोट गेज के लिए अलग होता है और मेट्रो गेज के लिए अलग होता है। फिर ब्रिज के बारे में, जो पुल वगैरह होता है उसके बारे में फिगर देखेंगे। कैपिटल ऑफ कंट्री ये दिया हुआ है, स्टेट हेडक्वार्टर्स, फिर सिटी टाउन पोस्ट ऑफिस के लिए टीओ उसमें सूचित किया जाता है। इसके अलावा टेंपल के लिए इस तरह का फिगर जो है सो उस पर दिया जाता है मैप में। मस्क्यूटो के इस तरह, चर्च का इस तरह, टॉम्स का इस तरह और स्ट्रीम का इस तरह। तो इस तरह जो है सो हम लोग फिगर देख करके मैप पर समझ जाएंगे कि ये जो फिगर दिया हुआ है और ये इस स्थान पर ये चीज जो है सो दिया हुआ है। इसके अलावा जो है सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद थर्ड जो है सो डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, थैंक यू सो मच।